Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to this class of Power System Steady State Analysis for fall 2024. Those of you who do not know me, my name is Abdul Khalik, and I have been teaching these power system related courses for quite some time. Okay. Now, this course on Power System Steady State Analysis is to analyze the power system in steady state. The primary book that we would be using for this course is Granger and Stevenson, okay, Power System Analysis. I have already shared the book with you, and then there will be an additional book by Glover and Sharma. Okay. ये दोनों books अच्छी books हैं और काफी standard books हैं और if you follow them closely तो आपको इंशाल्लाह कोई problem नहीं होगी. The course involves modeling of power system. So effectively what we would do is in the major part of the course, we would learn how to model our power system. और जब एक दफा हमारे पास power system का model आ जाएगा, तो then we would start analyzing. Okay. Now for analysis, okay, we would be using two softwares. One is MATLAB or the other one is PowerWorld. PowerWorld is a visual software जिसमें आपके पास you can get the power system represented in a visual form, और उस visual form में आप जब आपके सामने power system available होगा तो then you can see how power is flowing in different parts of the system. इसके साथ साथ we would be using MATLAB also. बहुत ज़्यादा number crunching है, तो उस number crunching में you would need some so you would need some sort of a software for number crunching. तो उसके लिए कि we would be using MATLAB. Okay. जो हमारी grading policy है, उस grading policy के हिसाब से we would be having assignments, class projects, midterm examination and a final examination. जो फाइनल एग्जामिनेशन है दैट वुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनल एग्जामिनेशन. असाइनमेंट्स आपको रेगुलरली साथ साथ मिलती रहेंगी. एक क्लास प्रोजेक्ट है जो कि you would be simulating a power system. तो उसमें you would learn how to model a power system और उसके बाद फिर then you would see कि जी उसको simulate कैसे किया जाए. तो ये easy project है, इसमें कोई different complication नहीं है. Set this. असल में मैं काफी दिनों बाद ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो कंट्रोल जो है वो थोड़े से एक्सेस करने में इश्यूज आ रहे थे. एनीवे, सो फाइनल एग्जामिनेशन जो मैं अब बात कर रहा था प्रोजेक्ट की, तो जो क्लास प्रोजेक्ट है दैट वुड बी फॉर 15%, और ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट होगा. ग्रुप प्रोजेक्ट में ये कि you can join 2 or 3 of you to do the class project. Homework जो हैं they would be assigned frequently. Late submission would be penalized. Submission आपकी सब LMS पे जो हमारा learning management system है उस पे होगी. Hopefully अगली क्लास तक that would also be set up. तो उसमें आप अपने सारे होमवर्क्स वगैरह की सबमिशन जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम कोर्स आउटलाइन पे आए तो as I said that this is power system steady state analysis, so the first part of any analysis is that you need to model and the system. Okay, so we would be modeling and analyzing the equivalent circuit representation of different components of a power system. In the next part, we would see कि जी अगर हमने power system को model और analyze करना है तो power system के components कौन कौन से हैं. Power system के components में जो major component है हमारे पास वो हमारे पास transformer है. तो we would know how to model a transformer. Power system का एक और component जो सबसे ज़्यादा आपके पास available है वो synchronous generator है. So you would learn how to model
a synchronous generator. Okay. Then in order to transmit power from the generator to the load, we have transmission lines. Okay, so we learn how to model our transmission line. Transmission lines different type की हैं, short, medium, long lines. तो उसमें we would see कि जी इन lines की modeling कैसे होती है. And once everything is modeled, okay, we would join them, and that joining would be in the form of a single line diagram. इसके through हमने उनको join किया, और जब ये सब चीजें join हो गई, तो now we have a model for the power system available with us. Now we can use this model, okay, and we can do different type of analysis on this model. Okay, so we would analyze the steady state operation of a power system. Okay, जो कि इस कोर्स का एक major component है, but you can also use the same model to analyze the transient operation of the power system. Okay. So in a steady state analysis, जो components हमारे पास आते हैं कि जी steady state analysis कैसे किया जाए, तो उसमें हमारे पास पावर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आती है, जिसको हम वाई बस मैट्रिक्स कहते हैं. सो वी वुड लर्न हाउ टू कम अप विद दिस वाई बस मैट्रिक्स, और जब हमारे पास ये मैट्रिक्स और पावर सिस्टम का मॉडल आ जाए, तो वी वुड सी हाउ पावर इज फ्लोइंग in an actual power system represented by this model. So we would do what is known as load flow analysis. Okay. So load flow analysis is learning how, finding out how power would flow in a normal system. Okay. Then another important analysis is short circuit analysis. कि जी अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट आ जाए, तो how would different currents flow in different parts of the system due to a short circuit or due to a fault. और मे बी अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम थोड़ा सा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में भी पढ़ लेंगे. तो ये हमारे पास इस कोर्स की आउटलाइन है कि वी वुड फर्स्ट मॉडल डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पावर सिस्टम. उन डिफरेंट कंपोनेंट्स में हमारे पास जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइंस हैं. वी वुड जॉइन ऑल दीज मॉडल्स, देन वी वुड एनालाइज this model for normal operation, and then we would analyze this model for a faulted power system, जिसमें short circuit analysis है और transient stability analysis है. Any question? नो सर, थैंक यू. बस अभी तक जो सर आपने बताया और है, बस ये सर एक वाई बस मैट्रिक्स का लोड फ्लो तो बेसिकली एक जो हमारी आगे लोड की जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में तो आइडिया है, लेकिन वाई बस मैट्रिक्स का जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा. बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि कोर्स आउटलाइन में क्या कुछ शामिल है. उसमें ये कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि वी वुड डेवलप अ मॉडल फॉर द पावर सिस्टम, कि जब हमने सिंगल लाइन डायग्राम बना ली, उस सिंगल लाइन डायग्राम में वी वुड बी हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम. जब हमारे पास ये डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम अवेलेबल हो जाएंगे, तो उसको हमने ज्वाइन कर दिया. जब हमने उसको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक सिस्टम आ गया. ठीक, उस सिस्टम को हमने कहा कि जी ये सिस्टम हमारे पास जो ना पावर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है. उस पावर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो डेटा अवेलेबल है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ वाई बस मैट्रिक्स. ठीक है, तो वो हमारे पास वहां पे वाई बस मैट्रिक्स है, वो उस फॉर्म में अवेलेबल है. तो ये बेसिकली उस पावर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, और उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि जी दिस इज अ वाई बस मैट्रिक्स. ओके सर. ठीक है. अब अगर हम देखें तो पावर सिस्टम जो है ना कोई नई चीज नहीं है. इट हैज बीन अराउंड फॉर more than a century, or almost I would say 2 centuries. Nikola Tesla was the first one, and Thomas Edison who started with power system, and they became enemies due to Edison's promotion of a DC system for electric power transmission and distribution. And Nikola Tesla was advocating AC power system. और आप सबको अंदाजा हो ही गया है कि जी who actually won this war, कि आज जो सारा पावर सिस्टम है वो एसी की फॉर्म में है, with DC coming in only recently.
जिसमें कुछ पावर ट्रांसमिशन जो है वो डीसी के थ्रू भी हो रही है। ठीक है, उसमें ये कि वी फाउंड आउट के एसी के क्या फायदे हैं और डीसी के क्या नुकसानात हैं, क्या फायदे हैं। तो दिस इज समथिंग which is history. Okay. But electricity first was discovered by Volta in 1796, जिसने फर्स्ट केमिकल बैटरी बनाई। उसके बाद फिर बैटरी जब एक दफ़ा हमारे पास आ गई तो उसकी पावर को यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रिकल आर्क लैंप्स आए, अर्ली ट्रांसफार्मर आया अराउंड 1811 और इलेक्ट्रोमैग्नेट केम अप अराउंड 1825 और उसके बाद फिर Faraday came up with the principle of DC power generation और उसने जो डीसी जनरेटर बनाया दैट वाज अराउंड 1831। तो ये अर्ली पार्ट ऑफ द हिस्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड है और अभी तक जो यूजेज था वो बड़ा लोकलाइज किस्म का यूजेज था। बट इन द फर्स्ट 100 years इफ यू सी तो इट स्टार्टेड फ्रॉम बैटरी और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जनरेटर्स आए। जनरेटर्स के बाद जब डीसी जनरेटर आए तो उससे फिर ये कि जो लोड था वो भी हमारे पास डीसी था और न्यूयॉर्क में फॉर द फर्स्ट टाइम डीसी इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम वाज इंस्टॉल्ड थे और वहाँ पे आपके पास ट्रांसमिशन भी डीसी थी और जनरेशन भी डीसी थी और आपके पास जो लैंप्स थे और जो आपके लोड्स थे वो भी डीसी थे। बट विद टाइम के डीसी के जो डिसएडवांटेजेस थे वो सामने आने लगे and people realized in DC power transmission we lose a lot of energy if we transmit power at lower voltages. उसमें फिर जैसे जैसे ये डिसएडवांटेजेस सामने आने लगे तो एसी पावर पे इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होने लगा। ठीक है, और एसी में दे फाउंड आउट कि जी वी कैन स्टेप अप द वोल्टेज और जब वोल्टेज स्टेप अप होता है तो उससे ये कि यू कैन रिड्यूस योर ट्रांसमिशन लॉसेस। तो उसके पीछे जो मेजर फोकस था एसी के पीछे वो ये था कि यू कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट्स ऑफ पावर। सो विद टाइम डीसी की जो पेनिट्रेशन थी वो कम होने लगी और एसी ज्यादा आने लगा। अब उसमें अगर आप देखें तो अराउंड 1890 90% of the power system was DC। लेकिन विद टाइम ये नंबर जो है ये डिक्रीज होने लगा और आप देखो तो यहाँ पे अराउंड 1942 ओनली 1% ऑफ द सिस्टम वाज डीसी। सो डीसी पे फोकस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और 40s के बाद तकरीबन आपके पास सारे का सारा पावर सिस्टम जो था वो एसी में आ गया। लेकिन लेटली अगर आप देखें तो विद एडवेंट ऑफ सोलर पावर सिस्टम के और कुछ जगहों पे जो स्टैंड अलोन सिस्टम्स हैं उसमें ये कि फिर से डीसी पिक्चर में आ गई है। बट अगेन दैट इज ओनली फॉर लोकलाइज्ड यूज्ड। और दूसरी जो डीसी का फोकस आजकल है वो ये कि लार्ज स्केल पावर में if the power to be transmitted is above a certain value के तो उसके लिए फिर आपको ये कि डीसी इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू एसी के। बट वो जो फोकस है वो बहुत ही लोकलाइज्ड है। अब अगर हम बेसिक्स पे देखें तो पावर सिस्टम की तो पावर सिस्टम में हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं कि वन इज जनरेशन, द अदर वन इज लोड एंड देन ट्रांसमिशन। नाउ द जनरेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर इज generated, okay. Then the load is the one where power is consumed, okay. And in order to take the power from the generation to the load, we need transmission line, and the transmission line is the one that transmits power from the source or the generation to the load, okay.
So these are the three major components of power system: generation, transmission, and the load. Okay. Now अगर आप एक देखें typical power system को, तो हमारे पास एक power plant है where large amount of power is generated. Okay. और फिर then you got transmission line, substations where the power is stepped down for normal use, और end में आपके पास end पे जी सर, जी स्लाइड इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, स्लाइड साथ-साथ अब नहीं हो रही थी, इसलिए सर इसमें अच्छा, इंडिकेट किया। अब हो गई आपके पास आई स्लाइड? अब हो गई सर, पहले बीच में 2-3 स्लाइड मिस हो अच्छा, गई। शायद मेरा ख्याल में वो आपका नेट स्लो हो गया या इस वजह से। सर वो इश्यूज हैं, वो अच्छा, इश्यूज हैं। थैंक यू सर। जी, अच्छा। तो आप देखें तो जो पावर सिस्टम है, although power can be generated at small scale, आपके पास जो small डीजल जनरेटर्स हैं, they also generate power, या आपके पास कहें कि जी सोलर सिस्टम्स हैं, they also generate power, and those powers are for local use. लेकिन इसमें ये कि as the size of the system is small, the cost per